factor to develop and use, test, to have enough features to meet customer needs while still validating a product idea early in development cycles. The basic, in nutshell, what I feel is to reduce cost by judging the customer's pulse, what customer want, and design the product accordingly, so that we don't have to, junk a product after so much of hard work. I must not stand between you and the source person today, Sukhwinder Singh Ji. Now I call upon stage Sukhwinder Singh sir to come and inform us about the topic. I think I will be audible like this only. My customers are happy, they can hear me. That is the first thing. That is the whole idea of this topic. Okay. Respected Vice Principal ma'am, respected all the teachers, professors from this college, and dear students. I think it's a very good opportunity for me also to interact, and even I can, if I can start taking some research or some ideas from all of you, that can be actually a new idea or a new viable product idea that can emerge from this. Many times youngsters are one of the key target who gives wonderful idea for innovations. ठीक है? Comfortable in Hindi, English, Punjabi, mix of all. Be comfortable. Just a very basic topic है, but it's an amazing thing जो आज की डेट में सबसे one of the most relevant topic है. ठीक है? So we just talked about, Pankaj sir just talked about what is ITC. I have worked with some other brands also. I started my career with GSK. They make Horlicks, Crocin. I worked with Cadbury. They make some wonderful things which make everybody so happy. Cadbury में तो slogan used to be, हमारे सारे offices में, सारे factories में, entry में slogan में लिखा होता था, we are creating joy for the customer. And we don't create healthy things. वो नहीं लिखा होता कहीं भी. But per se, chocolate is a healthy thing. That is the idea, that is the thing, that is what is the basic of what is the lean startup or what is the minimal viable product or an idea. There are numerous examples these days. We will just, and if any time you feel कि इसमें मुझे कुछ बोलना है, most welcome. You can always add. I am also learning with you. मैं भी तुम्हारे साथ ही बैठना चाहिए था. Actual knowledgeable बंदे यहाँ पे हैं सारे हमारे this team. But we will share you what we do and how these things work. ठीक है? Business के लिए सबसे important क्या है? बताओ. हाँ शाबाश. First person who has raised the hand. Mindset. Very good. Mindset सही है. और any other ideas? Investment. How many of you think mindset? हाथ ऊपर करो. Mindset वाले. छोटा नहीं करना, लंबा करो. There is no good, wrong, right. कुछ नहीं होता. लाइफ में इस कौन से क्लास में है? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर? मिक्स है ना. अब आप लोग स्कूल के बाद जब इस लर्निंग स्टेज पे आ जाते हो, दिस इज द टाइम टू स्टेप अप एंड स्टैंड आउट. भीड़ से अलग. तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ मेरा ये थॉट प्रोसेस है, मैं इसको इस एंगल से सोचता हूँ. डन. माइंडसेट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और एनी अदर आइडिया? हाँ चलो माइंडसेट के बारे में बताओ. बताओ. शाबाश. हाँ वेरी गुड. माइंडसेट और टेकिंग एबिलिटी एक ही है या दो है? सर कंबाइंड ही है. कंबाइंड है. चलो मान लिया. कितने लोग सोचते हैं कंबाइंड है? इस बार हैंड रेज करो. कितने लोग कंफ्यूजन में है? वो हैंड रेज करो. ठीक है चलो. वेरी गुड. द फर्स्ट पर्सन इज ऑलवेज क्या कहते हैं ना, पाथ ब्रेकर है वो. फ्रंट रनर है तुम लोग. शाबाश. अप्रिशिएट. ठीक है. एनी अदर आइडिया? एनी अदर कॉन्सेप्ट? एनी अदर थिंग दैट कम्स टू योर माइंड? बिजनेस के लिए क्या है इंपॉर्टेंट? इनोवेशन. वेरी गुड. टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी. ओके.
जो अपने डीएवी कॉलेज के बाहर कुलचे छोले बनाता है उसके पास टेक्नोलॉजी है, पर वो बिजनेस कर रहा है? आइडिया है, ठीक है, आइडिया मेरे पास भी है, मनी भी बहुत लोगों के पास होता है। सबसे जरूरी क्या है? फाइनली आ गया तू। माइंडसेट, रिस्क टेकिंग, सबसे इंपॉर्टेंट है कस्टमर। आप दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट बनाओ, सबसे कैंट। अगर आप सोचते हो जूते, नाइकी, प्यूमा, इन सबको भी बीट करके आपने कुछ और बना दिया है। गर्ल्स अगर कुछ डिजाइनर ज्वेलरी या डिजाइनर कॉस्मेटिक्स के बारे में सोचती हैं तो नाइका, नुइका, शुगर सबको बीट करके आपने कुछ कर दिया है। शुगर ने कितनों को बीट कर दिया? शुगर एज ए प्रोडक्ट कितने लोगों को बीट कर दिया उसने? लैक्मे और पता नहीं कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो गए। तो सबसे जरूरी जो चीज है ऑफ एंटायर बिजनेस, दैट इज कस्टमर। कस्टमर अगर है तो बिजनेस है। अगर आपका कस्टमर नहीं है, आपने दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट बना दिया, जो मैं पहले भी कह रहा था, सबसे बेस्ट ब्रांड बना दिया, आप उसके पीछे भागोगे, वो बोलेगा मुझे चाहिए नहीं यार। क्वालिटी में हम लोग जो बोलते हैं, थोड़े दिन पहले भी आई थिंक कुछ बच्चे मेरे उसमें थे, तो क्वालिटी, मैं सारी उम्र 26 ईयर्स हो गए मुझे जॉब करते हुए, ठीक है ना। मैंने हॉर्लिक्स में भी जॉब किया है, कैडबरी में भी किया है, जैसे मैं बता रहा था, अभी आईटीसी में भी कर रहा हूँ। आईटीसी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अभी लास्ट वीक भी मैं, हमारी एक नई फैक्ट्री लग रही है लखनऊ में, वहाँ पे कुछ करने गया था कि उसमें क्या हो रहा है। तो वो क्यों है? इतने सारे प्रोडक्ट्स अलग अलग हैं, इतनी सारी डिमांड्स अलग अलग हैं, इतनी सारी वैल्यू प्रपोजिशंस हैं। कुछ कई लोग बोलते हैं यार हॉर्लिक्स पीने का कोई फायदा भी है, पर कस्टमर पी रहा है और उसकी वैल्यू प्रपोजिशन क्या? किसने पिया हॉर्लिक्स? हॉर्लिक्स का सबसे पहला कस्टमर और उसकी वैल्यू प्रपोजिशन वो थी कि हॉर्लिक्स आपको वो सारी चीजें देगा जो आपको दाल, रोटी, सब्जियां, फ्रूट से नहीं मिलेंगी। तो कस्टमर सबसे जरूरी है। उसके बाद आपको अपना आइडिया बताना है कस्टमर को कि आपको इससे क्या मिल रहा है। छोले कुलचे तो बोला, एटलीस्ट छोले तो घर में भी बनते हैं ना, तो छोले कुलचे वाले के पास माइंडसेट भी नहीं है, उसके पास सेटअप है, उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, मनी भी पता नहीं उसने कितने से शुरू किए होंगे, कितने से नहीं लिए होंगे। बहुत सारे जो स्टार्टअप और बहुत सारे जो बिजनेस होते हैं, आपने कभी सक्सेस स्टोरी सुनी हो तो लोग बोलते हैं यार मैंने तो किसी से 2000 रुपए उधार लेके अपना बिजनेस शुरू किया था। तो हॉर्लिक्स वाला भी जब उसने वो किया तो उसने सबसे पहले ये देखा कि लोग रोटी खा रहे हैं, लोग अपना मील, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कर रहे हैं, बट लोगों के पास ऐसा क्या डेफिशिएंट है जो उनको अपने नॉर्मल उससे नहीं मिलता। आजकल आपने सुना है ना बहुत ज्यादा विटामिन डी की डेफिशिएंसी है आपको। जो प्रोफेसर जो मेरे हम उम्र हैं टाइप, वो सारे हमने कभी सुना ही नहीं था ये विटामिन डी डेफिशिएंसी भी हो सकती है। मेरे को इतने साल हो गए, अब जो 5 सालों में हम सुन रहे हैं वो वाला फैक्टर तो था ही नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कस्टमर। बहुत सारी कंपनियों ने वंडरफुल प्रोडक्ट्स बनाए, बहुत कस्टमर्स के पास वो लेके जाते हैं, उनको बहुत डिस्काउंट्स देते हैं, उनको करते हैं। कितना एफर्ट लगता है एक प्रोडक्ट बनाने में, इतना एफर्ट लगता है। एक बार हमारे को ऑलमोस्ट 8-10 साल हो गए, हमें एक दिन बोल दिया गया, हमारा जो एमडी थे उन्होंने हमें एक वर्कशॉप में ऐसे 2 दिन के लिए 4 बंदों को एक रूम में, 4 बंदों को दूसरे रूम में, 4 बंदों को तीसरे कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा दिया, लैपटॉप दे दिए, खान पीन का सारा सामान दे दिया, कहे कि आपका जी लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट जो भी आपको चाहिए यहाँ मिलेगा। आप रात के 11 बजे तक तो आपको मिनिमम सोचना ही है
बाकी आपकी मर्जी है, आप देखो 2 दिन में आपको एक हमें बिजनेस आइडिया देना है कि हमें कस्टमर से और मतलब कौन सा कस्टमर को हम टारगेट करके अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। मतलब 1.5 दिन के बाद तो मतलब हमारे पागल होने जैसी स्थिति आ गई। एंड दैट हैज टू बी विद जस्टिफिकेशन। ऐसे नहीं कि मैं 1.5 दिन सो के फिर बोलूँगा हाँ चॉकलेट बना लो, अच्छा मेरी बारी है बोलने की, अच्छा ऐसे करो हॉर्लिक्स बना लो या हॉर्लिक्स का कंपटीटर बना लो। इट डजंट कम एज इजी एज दैट। दैट इज द सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, द सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट प्रोडक्ट, सर्वाइवल फॉर द मोस्ट इनोवेटिंग एंड एवर चेंजिंग प्रोडक्ट्स। क्यों हर 2 सालों के बाद गाड़ियों के मॉडल चेंज कर देते हैं? आज की डेट में जितनी कार्स मार्केट में अवेलेबल है वो वर्चुअली कोर जो पर्पस है कार का उससे बहुत कुछ कम हो चुकी है, और फालतू में टच स्क्रीन, 4 लाइटें, 5 सेंसर, वो सब बढ़ गए हैं। बट देन कस्टमर इज डिमांडिंग, यंगस्टर्स लाइक यू। हम लोग तो एक गाना सुनते थे, चलो चल रहा है, अब चलो अब लता मंगेशकर शुरू होगी। जब मैंने पहली कार खरीदी तो लता मंगेशकर के गाने लग गए, तो चल रहा है। अभी हम 2 मिनट के बाद चेंज करना है कि ये करना है वो करना है। बट ऑल्दो द रियल प्रिपोजिशन जो कार का फंडा क्या है, कार की वैल्यू क्या है, ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। थार मुंडे हो, कौन सी आई नहीं? हाँ, क्या नाम है उसका? रॉक्स। थार मतलब आइडियली कोई पर्पस सॉल्व करती है वो गारेज भाड़न तो अलावा? बताओ, लिटरली डज इट सॉल्व एनी पर्पस? और जिन लोगों ने पिछले 3 सालों में थार ली है वो पिछले 3 दिनों में इतने दुखी हैं कि पहले हमें 3 डोर थार दे दी 15-15 लाख रुपए च, और 5 डोर आ गई। हमारी तो ऑब्सोलीट है, बकवास है ये। एंड यू हैव क्रिएटेड ए न्यू प्रोडक्ट, इसको कैनिबलाइजेशन भी बोलते हैं, आपका पुराना प्रोडक्ट मतलब, पर वो है कि आपने उससे ज्यादा आपने इनोवेट करके एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो आपके कस्टमर और आपके काफी कंपटीशन को उड़ाएगा। कि हाँ मतलब एंट्री कर रहा था, पहले तो ऐसे बोलते थे कोई नहीं यार थार मिल जाए चाहे उसका दरवाजा भी ना होए, मैं सनरूफ को अंदर भर दूंगा। मेरा भी कजन, मैंने जब कार ली तो मेरे को कहता 2 दिन मेरे को पूरा उसने ज्ञान दिया है, मेरे कजन का बेटा सॉरी, कि सर आप मामा जी आपको ना थार ही लेनी है बस। मैंने जब तीसरे दिन अनाउंस कर दिया कि मैंने कुछ और ले लिया है, वो 3 दिन मेरे से बोला ही नहीं। जैसे अभी थार के कस्टमर जब से रॉक्स लॉन्च हुई है 3 दिनों से परेशान है कि हमारा क्या कसूर है, हमें उतने पैसों में 3 डोर मिली जिसमें हमें घुस भी नहीं पाते, सामान भी नहीं रख पाते, और अब नहीं आ गई है 15 दिनों में, मतलब वो तो हमारी छाती पे बूम चलेगी जब हमारे सामने से निकलेगी, हम तो पत्थर मारेंगे उसे। दैट इज व्हाट। एंड व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू थिंग इन दिस वन? उन्होंने क्या किया? कुछ ज्यादा इनोवेट किया, कुछ ज्यादा दिमाग लगाया, समझा कहां से उन्होंने? 3 साल के जो कस्टमर थार यूज कर रहे थे वो गारे में तो अरे भी उन्होंने लेके को महंगे भी अपने दिखाने के लिए कि हमारी 4x4 है, गारे में और पहाड़ों में जहां मर्जी चढ़ जाती है। बट नाउ आफ्टर 3 years द स्ट्रॉन्गेस्ट फीडबैक दैट दे गॉट फ्रॉम द कस्टमर वाज कि यार सब कुछ तो है यार, ये पिछली सीट में जाने घुसने के लिए 2 दरवाजे नहीं दे सकते तुम। फिर किसी ने ऐसे भी बोला होगा दुखी होकर, मेरे जैसे नहीं, एटलीस्ट मेरे साइज के बंदे ने, कि यार एक ये स्टीरियो, ये मतलब टच स्क्रीन वगैरह ये कुछ का मजा नहीं है, दरवाजा लगाओ पहला। दे गॉट एन आइडिया। जब उनके कुछ कस्टमर दुखी हैं तो व्हाई नॉट टू पेश अनदर थिंग। उसके पहले व्हाट दे डू, दे फ्लोट अ मैसेज और दे फ्लोट एड, जिसको आप बोलते हो, या एक स्टिंकर जिसे बोलते हैं, ऑफिस या कॉर्पोरेट की भाषा में उसको स्टिंकर बोलते हैं। वो एक लाइन करते हैं, डू यू वांट अ थार विच इज मोर कंफर्टेबल? इंस्टाग्राम और फेसबुक यू ऑल यूज, सो दे विल ड्रॉप अ स्टिंकर।
Do you really want your Thar to be a 4-door Thar or a 5-door Thar? उनके पास बहुत सारे बंदे बैठे होते हैं, वो डाटा एनालाइज करते हैं, दे सी कि भैया कितने रिस्पॉन्स आए हैं। मैं क्योंकि मैंने तो लेडी दी थी, मैं तो तीसरे दिन दूसरी कार ले ली, मैं तो वो पोस्ट ही देखता इंस्टाग्राम पे, पर 15-20 दिन के बाद मैं देखता हूँ कि वहां पे तो 10 लाख बंदों ने बोला कि वी, अगर हमें गिवन अ चॉइस, वी वांट अ थार व्हिच हैज 5 डोर्स। दैट इज वेयर मिनिमम एफर्ट से एक प्रोडक्ट तैयार कर लिया उन्होंने। चेंज क्या करना है? दरवाजे। उसको करने के लिए कुछ ना कुछ कॉस्ट कटिंग की होगी, नहीं भी की होगी तो कहीं पैसे बढ़ा देंगे। नाउ दे हैव ए वेरिएंट। कोई अभी जब 5 डोर वाली किसी को नहीं मिलेगी नेक्स्ट 6 महीने तक, फिर बंदे बोलेंगे चल यार 5 डोर नहीं है तो 3 डोर ही दे दे यार, वो थोड़ी बिक्री तो है नहीं, वो तो दे दे यार। So the normal product is also selling. A new idea is hot selling. And what is the effort gone? Minimum effort. By what? Customer understanding. And the mindset also comes there. कुछ बंदों ने बोला होगा तो यार क्या यार तुम अभी हर जो मतलब उनकी टीम में भी, इनोवेशन की टीम में भी, बाय द वे आपको पता है हाउ मेनी ऑफ द गर्ल्स, स्पेशली गर्ल्स, नो कि थार एंड एक्सयूवी इज एक्चुअली डिजाइन बाय अ लेडी। वेरी गुड। तो जब उसने अपनी मीटिंग में प्रपोज किया होगा कि भाई 15 लाख बंदों ने बोला है कि 5 डोर वाली आ जाए तो वी विल बी हैप्पी अबाउट इट, तो कई ने बोला ओ यार तुम थार तो बिक रही है, साइड में रखकर तू दूसरी कोई नई कार के बारे में अगर तेरे पास पॉइंट है तो प्लीज पुट इट ऑन द टेबल, अदरवाइज ये। बट देन एज ए बिजनेस द माइंडसेट कम्स इनटू पिक्चर कि भाई ये तो थाली चिपड़ाया हुआ लड्डू है, ये तो बिक ही रही है, why not encash more on this one till the time we have something else coming up. How many of you, especially boys, have actually followed a auto show, auto expo? देखा है कभी, सुना है कभी, कोई मैगजीन पढ़ी है कभी? दसो किसी ने सुने, किसी ने नहीं सुने? ये भी जलंधर है, थार चल गए। ऑटो एक्सपो टिपिकली इंडिया में फरवरी में लगता है प्रगति मैदान में, और अगर आपके कॉलेज के आसपास कहीं पे पुरानी मैगजीन्स बिकती हैं तो ऑटो कार या ऑटो मोबाइल की कोई मैगजीन ले लो, अगर 5-6 महीने पुरानी मिल जाए, तो वहां पे कुछ नहीं होता, वहां पे इस टॉपिक के ऊपर 90% फोकस होता है। अजीब सी एक कार आएगी वहां पर, वो लॉन्च कर दी जाएगी। ये देखिए अभी रिसेंटली MG कॉमेट नैनो, नॉर्मल कार, दिस कार नैनो भी ऐसी एक ऑटो एक्सपो में आई, ये है जी कार, ये आइडिया है। व्हाट वाज द आइडिया? एनीबडी दोस्त? उसका सेलिंग आइडिया क्या था? टाटा ने आके क्या बोला वहां पे? चीपेस्ट वन। कोई नॉर्मली चीपेस्ट के ऊपर पहले बात नहीं करता, वी जो होता है ना, मतलब कस्टमर के सामने वैल्यू के ऊपर बात की जाती है। इट्स नॉट अबाउट चीप है, मतलब चीप है तो मैं 3 पहिए वाली दे दूंगा, हाँ वो आज का है। तो टाटा ने क्या बोला? हाँ नहीं, टाटा ने नैनो के बारे में क्या बोला किसी को पता नहीं, मैं थोड़ा सा पीछे वाला सवाल पूछ रहा हूँ। प्रॉब्ली किसी ने नैनो देखी भी है अभी लेटेस्ट, पता भी है किसी को? तो टाटा सिंपली कम्स विद द कार ऑन द स्टेज ऑफ ऑटो एक्सपो एंड ही सेड कि इंडिया में 90% लोग स्कूटर में 4-4 बंदे बैठ के जाते हैं, बारिश में, धुंध में, विदाउट हेलमेट। मैं आपको एक वैल्यू दूंगा जो स्कूटर से थोड़ी सी ज्यादा प्राइस होगी। चीप की बात नहीं होती कभी भी, दैट इज नॉट हाउ यू सेल एन आइडिया। आई विल गिव यू अ वैल्यू जिसमें बहुत कम खर्चा होगा और 4 बंदों की फैमिली बारिश,
धुंध, तूफान, गंदगी से बच के ट्रैवल कर पाएगी। एंड हियर इज माय आइडिया। पर्दा उठता है, नैनो दिखती है। फिर जो कंप्यूटर होते हैं, थारपुर वाले भी बैठे होंगे वहां पे, बोल बेकार है कोई। कईयों ने उसका नाम रख दिया डड्डू, एक्चुअली साबुनदानी। मारुति वाज फर्स्ट कॉल्ड एज साबुनदानी। साबुनदानी से भी खाने के काम आ जाता है। मेरी बुआ जलंधर में रहती थी, नाउ शी इज एक्सपायर्ड। शी वाज, जो फर्स्ट लॉट पे 100 मारुति कार निकली थी ड्रॉ में, मारुति उद्योग द्वारा, उसमें मेरी बुआ का भी नंबर था। 54,000 की कार थी। आज की डेट में एक्टिवा का क्या प्राइस है? उस जमाने में 85, 86 आई थिंक, इफ आई एम करेक्ट। 54,000 की कार, ब्राउन कलर की, चॉकलेट की, साबुनदानी। मेरी बुआ ने दिल्ली से जाके उसकी डिलीवरी लेके, एंड व्हेन मतलब शी केम, एंड हमारे जो बंदे आए टिपिकल पंजाबी माइंड से टड़े, ओ यार। But then there are customers for that. There is a person called Ram Jethmalani in India. आपको बच्चों को पता नहीं होगा, अभी आपने इतनी दुनियादारी नहीं, पता नहीं आपको कि राम जेठमलानी क्या चीज है। राम जेठमलानी वो चीज है जो इंडिया के टॉप 5 वकील्स में आता है। ही चार्जेस, एक दिन वो कोर्ट में अगर पेश हो रहा है, वो पॉलिटिशियंस और अंबानीज और टाटास जैसे लोगों के केस लड़ता है आज की डेट में, पिछले 20 सालों से इनफैक्ट। तो अगर वो कोर्ट में आता है एक दिन, चाहे उसका केस लगे चाहे ना, अगर आज पेशी है, राम जेठमलानी अगर कोर्ट में आता था, तो जब तक मैंने सुना था तब 1 लाख रुपया उसकी जस्ट अराइवल फीस होती थी। एंड ही इज वन ऑफ द पर्सन जिसने प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया राजीव गांधी को रोज 10 क्वेश्चन पूछ के अखबारों में ही बिकेम फेमस कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर टेल अस व्हाई दीस थिंग्स आर नॉट हैपनिंग इन इंडिया। दैट इज द पर्सन कॉल्ड राम जेठमलानी। और हजारों वकील उसके नीचे खड़े रहते हैं कि सर आपके जहां पर आप कोर्ट में केस कर रहे हो, तो हमें उस कोर्ट में आने का मौका मिल जाए, तो आप कैसे, हाउ यू प्रेजेंट योर केस एंड योर एवरीथिंग, दैट जस्ट वी वांट टू स्टडी। एंड हाउ डिड द कनेक्शन कम बिटवीन माय बुआ एंड राम जेठमलानी के बंदे ने मेरी बुआ के घर पे कॉल किया, फोन भी नहीं होता था, मोबाइल, कि वी हर्ड यू हैव ए मारुति कार, आप पैसे बताओ, वो कार मुझे चाहिए। मेरी बुआ ने एक्स अमाउंट कोट किया, कुछ उन्होंने भी फीडबैक लिया होगा मार्केट से, दैट इज वेयर प्रोडक्ट एंड फीडबैक एंड कस्टमर आर इंपॉर्टेंट। एक अमाउंट कोट किया, राम जेठमलानी को उसको कॉस्ट, दैट इज व्हाई कॉस्ट इज वेरी लास्ट थिंग। राम जेठमलानी को पैसे पूछे की कोई परवाह नहीं है। राम जेठमलानी सेड 1,02,3,000 रुपया का प्राइस दिल्ली में चल रहा है, मैडम तुसी देख लो तुसी कितना लेना है, मेरे को 15 दिन में ये कार चाहिए। एंड वी आर ऑल्सो टॉकिंग विद 3-4 मोर पीपल, डील कहीं पर भी मिल जाएगी ऑन टाइम। किसी और ने ले ली, दे दी, ऑफर कर दिया कि चलो ये ले लो आप, तो फाइनली 1,05,000 रुपए में मेरी बुआ ने वो कार बेची। So that is, so cost doesn't come. The most important thing is customer and how you present your value to the customer. उस जमाने में जो कारें थी एम्बेसडर्स और फिएट, वो फ्यूल एफिशिएंसी पे 0, कंफर्ट लेवल पे 0, सॉलिड हुई थी, वो हाथ से नहीं जाता। अभी भी चलती है। कलकत्ता, अगर किसी ने कहीं कलकत्ता का ब्लॉग देखा है या वॉट एवर इट इज, सो दैट इज हाउ इट इज। एम्बेसडर बहुत रिसेंटली बंद हुई है। सो दैट इज होल आइडिया। कस्टमर इज द किंग। जिसने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझा, उसके ऊपर काम किया, he can do a startup, he can make a viable product, he can make a valuable product. This is the essence. Got it? ठीक है, मेरी आवाज गूंज आ रही है?
समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इंटरेस्टिंग है। Yes, sir. तो ये है मिनिमल वायबल प्रोडक्ट इज इक्वल टू मिनिमम पासिंग मार्क्स। फर्स्ट स्टेप व्हेन यू आर डूइंग एन इनोवेशन, पहला तो वही होता है ना, ओलंपिक्स अभी हुए, बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो इंडिया में जो बंदे जाते हैं टिपिकल ओलंपिक्स में, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो, तो उनको टारगेट यही दिया जाता है कि पिछली बार ये मेडल के लिए ये टाइमिंग वाले, मान लो कि कोई एथलीट है 100 मीटर्स का, तो दे से कि लास्ट टाइम ये टाइमिंग था ओलंपिक्स का, ये टाइमिंग था एशिया का, इसके हिसाब से हमारी ये बैंडविड्थ सेट हो गई। अगर आप इसमें टाइमिंग अपना अचीव कर लो तो यू विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द ओलंपिक इवेंट। जस्ट इमेजिन, दैट इज व्हाट इज मिनिमल वायबल प्रोडक्ट। जो मिनिमल वायबल प्रोडक्ट वो है जो आप एक्चुअल प्रोडक्ट बनाने से पहले या एक्चुअल प्रोडक्ट कुछ और है, उसको एक स्टेप पीछे जब आप सोच रहे हो आज की डेट में, तो ये मिनिमम वैल्यू प्रोपोजिशन है। जैसे वो टाटा ने बोला कि मेरी कार कोई बहुत बड़ी फैंसी कार नहीं है, बट दिस कार विल एलिवेट यू फ्रॉम योर स्कूटर, सेव यू फ्रॉम बारिश, कोहरा, द प्रॉब्लम्स ऑफ द रोड। कोई रिक्शा वाला आके बीच में मार गया ये वो, इट इज वन स्टेप सेफर देन बीइंग ऑन ए स्कूटर। तो ये है मेरी वैल्यू प्रोपोजिशन। इसको ब्यूटीफाई कर करके मर्सिडीज को ऊपर बना के आज टाटा जैगुआर भी बेच रहे हैं। Because there is a customer for that, and because the value proposition he threw was कि इंडिया में इतने पैसे इन्वेस्ट करने वाले बहुत लोग हैं और ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है इंडिया के लोगों की, विच एक्चुअली मारुति इन कैश। मारुति आजकल बहुत बढ़िया दूसरी कारा भी बना रहे हैं, बट असली क्या है? मारुति अल्टो, दैट वन। So that is what you have a customer, you have a value proposition। आप बोलते हो कि ये मेरी वैल्यू प्रोपोजिशन है, ये मेरा मिनिमम आइडिया है आपके लिए और ये प्रोडक्ट है मेरा, प्लीज उसको बिल्डअप मैं जैसे मर्जी करूंगा बाद में, ठीक है ना? तो दैट इज व्हाट, और मिनिमम होना, एंड इट्स अ वेरी सिंपल फिलॉसफी एंड इट इज अ वेरी रिस्क फ्री। कि पहले दिन अगर मान लो कि तुम्हें शूज का शोरूम खोलना है, तो पहले दिन ही 5 करोड़ रुपए लगा के नाइकी, प्यूमा, वुडलैंड वर्सेस अ स्मॉल प्लेस। व्हाट पीपल, मेनी पीपल आर वॉचिंग ना इंस्टाग्राम पे आजकल, बड़े लोग हैं जो बहुत रिमोट जगह से बैठ बैठ के बिजनेस करी जा रहे हैं कि ये देखो जी मेरे पास ये है, मेरे जूते हैं, आप ऑर्डर कीजिए। एक जूता ऑर्डर करोगे 899 का है, 3 जूते ऑर्डर करोगे 699 का पड़ेगा, एंड आपको कुरियर भी फ्री पड़ेगा। एंड द मोस्ट क्लासिकल एग्जांपल ऑफ दिस MVP इज Amazon, जो आज हमारी जिंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। एनीबडी नोस Amazon की स्टोरी क्या है? अलीबाबा चाइनीज वाला है, अलीबाबा 40 चोर। इसके बैक साइड। तो दिस इज व्हाट इज कि अगर कस्टमर है तो उसको आप एक आइडिया सेल कर सकते हो, और कस्टमरों की भीड़ में से आजकल कितने ब्रांड होंगे कारों के, शूज के? 40-50। कारों के चलो मैं 25 मान लेता हूँ जो अच्छे हैं। उन सब में से आपको एक आइडिया निकालना है कि क्या है भैया। आई वॉज शेयरिंग, आई थिंक somebody was there, an example of a war between Coke and Pepsi, and जब एक बंदे ने एक्चुअल मार्केट रिसर्च करके आइडिया निकाला, कोक और पेप्सी की टीम में से ही उन्होंने बोला कि हम एक दूसरे का मत्था ऐसे ही फोड़ी जा रहे हैं। There are at least 25 to 30% कस्टमर जो चाय पी जा रहे हैं, वो कोक करो पीएंगे,
वो रेडीली अवेलेबल है कि वो मिनिमम एफर्ट है, उन्होंने को चाह बकवास है, कोक हेल्दी है। हटके बोलते ना, तेरे पास क्या है? हटके आइडिया, हटके। मेरी फिल्म हटके है, चाहे झटके लगे बाद में। So that is how it is. You come up with a proposition. You know कि कुछ कस्टमर हैं जो दुखी आत्मा हैं, उनको कुछ देना है। हमारी कंपनी ने yippee नूडल लॉन्च किया। किसने खाया yippee नूडल? खुल के फीडबैक दे रहा है, ठीक है यार, इसका मसाला बहुत तेज है यार, ठीक है, तो मतलब हाँ वो ना हो तो वो खा सकते हैं। बट जो हमारी कंपनी ने yippee नूडल जब लॉन्च किया तो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट प्रिपोजिशन पता क्या था? कि कम से कम 35-30% लोग होंगे इंडिया की इतनी सारी करोड़ों की पॉपुलेशन में जो मैगी खा खा के तंग आ गए हैं। ठीक है, तो मैगी स्क्वायर होती है, उसको तोड़ना है, और उसमें अगर तुम्हें चाहिए अंडा सब्जियां डालनी है तो हम एक वैल्यू पेश करेंगे जो वो सारा होगा जो मैगी नहीं होगी। कोई तो होगा 30% पॉपुलेशन में, 20% लोग तो पक्के होंगे, एंड दैट 20% अमाउंट्स टू दिस मच वॉल्यूम एंड दिस मच प्रॉफिटेबिलिटी एंड दिस मच प्रोबेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी। बहुत है इतना। और यही तुम्हारे कॉलेज के सामने अगर कल नया कुलचे वाला आ जाए, वो भी यही देख रहा है, अच्छा यही बेच रहे हैं कुलचे, खा रहे सारे टमाटर पापा के बेच रहे हैं, ये कर रहा है, कल मैं भी करता कोई घटो घट 2-4 तो होंगे जो तक्के खा रहे होंगे, उसकी बारी नहीं आ रही होगी, वो बोलेगा यार मेरे को बहुत भूख लगी है, वो बोलेगा चल यार तू ही खिला, तेरे पास क्या है। और उस दिन अगर आपने धांसू कुलचा खिला दिया तो अभी वो वहां नहीं जाएगा और 2-4 को तोड़ के लाएगा और की वही खाई जा रहे हो बार बार। दैट इज व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू। कुछ नहीं है ज्यादा, कोई उसको पता ही नहीं है माइंडसेट क्या है, कॉस्ट सेम रखनी है उसने। मैं पटियाले से हूँ, पंजाबी यूनिवर्सिटी मेरे घर के बिल्कुल पास, ऐसे बाउंड्री है जैसे तुम्हारे डीएवी कॉलेज के बाद जैसे तुम्हारी वो पार्किंग है ना, ऐसे ही मेरा घर है। हम भी पंजाबी यूनिवर्सिटी के बाहर ਜਿਹੜੇ कुलचे बेचते हैं वो खाने आते थे, वहां में भी 5-6 खड़े होते हैं, उनका प्राइस आज तक 15 रुपए ही है, चाहे कुलचे का कुलचा ही गायब हो जाए चने तुम्हारे हाथ में रख के दे दे कल को, क्योंकि 15 रुपए में उनको बिजनेस वायबल नहीं है। बट दैट इज हाउ दे आर डूइंग द बिजनेस। कि 15 रुपए मार्जिन का थ्रोट है, यहाँ पे सब 5-6 खड़े हैं, 15 रुपए के ऊपर नहीं जा सकते, ये जो मर्जी हो जाए। बीच में ऐसा भी मौसम आता है जब टमाटर बहुत महंगे होते हैं, फिर एक कुलचे वाला अपने रेडी पे डिस्प्ले लगाता है, मेरे कुलचे में अभी भी टमाटर मिलेंगे उसने 5 को कर दिया ना, 5 को सोच के तो डाल दिया उसने एटलीस्ट, यार ये टमाटर कहां से आ रहा है, ये कुछ झोल कर रहा है। देखो जरा एक, वो फिर एक सीआईडी एजेंट छोड़ते हैं उसमें, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिंग डाटा। वो तुम्हारे पास आके खा भी जाएगा 2 बार, तुम्हें पता नहीं लगेगा। वो बोलेगा टमाटर दीजिए और टमाटर के नाम पे सॉस पाई जा रहा है, या सच्ची टमाटर पाई जा रहा है, उसने कभी रखे हो बचा के, पहले उसको लग रहा हो कि मेरे कुलचे बिक ही नहीं रहे, टमाटर टमाटर होते ही पई है, मेरी फ्रिज पड़ी पई है, ये तो किसी दिन फेंकने पड़ेंगे। कम है डे कि टमाटर हो गए 100 रुपए किलो, दूसरे कुलचे वाले पछता रहे हैं, इसके घर में टमाटर पड़े, इसकी होगी चांदी। That is the thing that you have to catch. जो बंदा आज की डेट में कस्टमर को वैल्यू दे सकता है वो सक्सेसफुल है, बट जो बंदा मौके पे चौका, which in corporate language is called as customer delight, not customer satisfaction, customer delight, he is the king. बहुत है, मुरथल गए अमरीका एंड ऑल दोस थिंग्स, बड़ा बेसिक सीखा। जो मैं फर्स्ट टाइम गया मैं कह रहे किया है, तब तो पता भी नहीं था किसी को अमरीका ढाबा है,
4-5 मंजे लगे होते थे, ऐसे ही ट्रैक्टर वाले आते थे, एक पराठा बनाता था, 4 बनाता था उसको, खा लिए, बहुत अच्छा यार, अच्छे हैं यार, ठीक है। हमारी प्रिपोजिशन उस टाइम में क्या थी कि हमारी मम्मी घर में बनाती है वो तवे वाले पतले जे पराठे, मेरे तंदूर वाले खिलाते हैं, तो यार इनोवेशन है, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। 2-4 ने वैसे ही बोल दिया, कॉलेज का ट्रिप था, तो 2-4 ने बोला होगा मजा आ गया, मजा आ गया, हम भी पीछे खड़े थे, हमारा ध्यान कहीं और था, हमने भी बोल दिया जब सानू मजा आ गया भी सानू भी आ गया। बट जस्ट सी द प्रिपोजिशन दैट इज चेंज नाउ ऑफ अमरीक सुखदेव, ऑफ मुरथल पर से, and everybody is selling the almost the same stuff there. वही दाल मखनी, वही आलू के पराठे, मक्खन वाले, नॉट आलू के पराठे, वही 2-4 डोसे, ये वो फलाना धमकाना, बट सारे एक दूसरे का कट थ्रोट चल रहा है। दैट इज कस्टमर डिलाइट। कस्टमर डिलाइट किसमें था? जो अमरीक सुखदेव ने उस टाइम देखा, जो अपनी हवेली ने देखा। ये लोग आते हैं, खा लेते हैं, फिर बाद में बोलते हैं यार वॉशरूम वगैरह तो है नहीं यहाँ पे। People used to be frustrated. When I was a kid, I used to travel from Bangalore to Punjab in 4 days in train. जो 2-3 ऑप्शन होती थी वो 4 दिन वाली सबसे बेस्ट थी, ये तो 6-6 दिन वाली ट्रेन भी थी। पानी पूरी नहीं मिलता था, हम अपनी 2-2 बोतलें पानी भर के रखते थे, 5 किलो की कैंडी पानी की होती थी। मेरे मदर भी 2-4 चीजें खाने की बना के रखते थे कि कहीं तुक्के से कुछ मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज बॉइल्ड एग्स, पूरी, दिस एंड दैट। वी हैड अ फिक्स मेनू कि अगर जब हमारी छुट्टियां होगी स्कूल दी, पंजाब जाने हैं, तो हमारी एक्साइटमेंट थी, हमारी मदर के लिए पनिशमेंट था वो। नाउ वी रियलाइज, एंड पूरा कोटा में मिलता था सामान। हम मिल गया ना एक बारी पूरियां थानू, और रात को मिल गया बस। कोई फालतू, कोई चिप्स चुप्स कोई जिंदगी में हमारे था ही नहीं उस जमाने में। बट देन ऑल these propositions come, all these ideas come, somebody realized कि नहीं। और just examine a very recent example, शताब्दी versus वंदे भारत, and that is what Haveli and Amrik Sukhdev idea clicked। उन्होंने कहीं देखा भी होगा, उन्होंने मार्केट रिसर्च किया, उन्होंने 2 बंदों से बात भी की होगी जो कस्टमर आते हैं ना। The good part of these people is a small startup, they will come and talk to you, और आपको पता भी लगेगा, उनके कंप्यूटर will come and talk to you, they will not know। और उन्होंने पूछा होगा कि भैया ये सब कुछ है, आपको ऐसा लगा दाल किधर लगी, ये है वो है, एनी अदर आइडिया, सजेशन, फीडबैक सर? वो हाँ यार, अगर थोड़ा ना थोड़ा ऐसा कुछ वॉशरूम्स या कुछ और हो जाए, ऐसा है, दिस इज व्हाट। एंड देन केम द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अमरीक सुखदेव। पर उससे पहले our dear friend Haveli, they presented world class dhaba, and the USP was washrooms, hygiene, and even music in the washrooms, and the posters in the washroom Punjabi की है। They must have seen somewhere ना, उन्होंने देखा कि इंडिया में तो ये चीज है ही नहीं। ये चीज अगर क्लिक कर गई, कितने साल हो गए हवेली को, जितने साल में नौकरी करते हो गए, तो तब पता लगा पीछे हवेली ने 25 साल बनाए तो बोर्ड लगा हुआ था, योर फेवरेट हवेली सेलिब्रेटिंग 25 years of love and affection with you। मैं कहा यार इतने साल तो मेरे को भी हो गए नौकरी करते। that time I realized कि क्या चीज है, and the value proposition they came up with। Got it? आ रहा है समझ में? कस्टमर है तो सब कुछ है। कस्टमर आपका सामान ले रहा है तो इनोवेटिव हो, आप एक्साइटेड भी हो, आप उससे फीडबैक भी लोगे, आप उसके हिसाब से कुछ चेंज भी करोगे। नहीं कस्टमर है तो आपके कॉलेज के सामने कोई ना कोई एक बंदा होगा जिसके पास बहुत कम कस्टमर जाते हैं, आप एज ए कस्टमर उसके पास जाके देखना वो कितने दुखड़े रोएगा। तो यार वो आप लोगों को गंद खिला रहा है, पर यहाँ पे बच्चों को समझ नहीं आ रहा, चाहे उसके छोले 6 महीने बनाने वाले हैं, क्योंकि बिके तो है, but he will curse the other guy because somebody was smart enough and he could encash the need and the demand of the customer। That's right। यही है सारी कहानी क्रक्स। Focus on your customer, use resources judicially। इसमें क्या है, कस्टमर को अगर आपने समझ लिया तो आपको हवेली बनाने की जरूरत नहीं है। उसके साइड में एक लक्की ढाबा है, वो भी सफिशिएंट बिजनेस करी जा रहा है।
but then he judiciously has taken a call कि मेरे पास ये लेवल का हाइजीन होगा, ये लेवल के मेरे पास मटेरियल होंगे, एंड मैं इन क्लाइंट्स को टारगेट करूंगा, मैं एनआरआई या किसी और को टारगेट नहीं करूंगा। और एक उसके आगे एक और पटवारी ढाबा भी बन रहा है, किसी ने देखा सुना है? वो कैसा था पहले? अभी रिसेंटली गया कोई 15 दिन पहले, उसने लोन भी बना दिया। मैं भी 6 महीने के बाद गया, तोड़ फोड़ करके उसने अपने जहां पे पहले वो कुकिंग एंड सर्विंग करता था वहां पे लॉन बन रहा है, पार्किंग आ गई है, सीसीटीवी लग गए हैं। अब सीसीटीवी थानू दाल मखनी 225 रुपए की मिल रही है, सीसीटीवी लगने तो बाद वो 250 रुपए की होगी। तुसी पूछे हो कभी? बट यू आर हैप्पी कि दिस इज अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इज इंप्रूविंग, ये साफ सुथरा हो गया यार, कोई पूछ ही नहीं रहा। एंड दैट इज व्हाट प्रपोजिशन सक्सेसफुल हो गई। यू यूज योर रिसोर्सेज जुडिशियसली, यू इंप्रूव योर एफिशिएंसी, यू गिव डिलाइट टू योर कस्टमर। पर पहले कस्टमर सेटिस्फैक्शन, देन कस्टमर डिलाइट। कस्टमर सबसेट बना लो अपना। व्हाट टाटा थॉट, व्हाट हवेली थॉट, व्हाट अ नॉर्मल पर्सन विल थिंक कि हाँ एक तो जैसे ये पी थॉट, सारे लोग मैगी मैगी करी जा रहे हैं, लेट अस मेक अ प्रोडक्ट। जो हम बात कर रहे थे मैगी स्क्वायर, उसको तोड़ना पड़ता है। इंडिया लोग मैगी किस में बनाते हैं? कढ़ाई में। कढ़ाई गोल होती है, तो हम नूडल बनाएंगे गोल, पहला नंबर उससे अलग होना है हमारा। देन उसमें सब्जियां डालनी पड़ती हैं, मम्मी को सोचना पड़ता है, अंडा डालना पड़ता है, सोचना पड़ता है, सब्जियां डाल दो यार कितना फर्क पड़ता है। ये प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी थोड़ी सी। यू हैव टेकन अ जुडिशियस रिसोर्स कॉल। रिसोर्स कि हमारा टारगेट है वो जो 25-28% लोग मैगी से बोर हो गए हैं या मैगी को चेंज उसके अलावा कुछ ट्राई करना चाहते हैं, तो गिव वॉट एवर यू वॉन्ट, बट यू वॉन्ट द मैक्सिमम कस्टमर्स आउट ऑफ दैट 28% ब्रैकेट। तो वो क्या क्या चाहते हैं पूछा होगा ना मार्केट में जाके, क्या है जी, क्या है जी, क्या है जी। उसके बाद आप अपनी मार्केटिंग भी करते हो, हमारा प्रोडक्ट अलग है जी, अलग है जी, अलग है। दैट इज हाउ इट हैपेंस। एंड मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्यों है वो? क्योंकि अपना दिमाग ज्यादा लगाने लोड़ नहीं है। न्यू एज पीपल आर क्रेजी फॉर नूडल्स, मैगी इज सेलिंग फॉर एन नंबर ऑफ ईयर्स, दे हैव बिकम सच ए बिग ब्रांड, इतने करोड़ रुपए छाप रहे हो। दिस इज व्हाट हैपेंस, एंड द सेम थिंग हैपेंस विद अस व्हेन वी टॉक अबाउट आशीर्वाद आटा। आशीर्वाद आटा इज अ मिनिमम 7,000 करोड़ की प्रॉफिट था लास्ट ईयर। इतना बड़ा ब्रांड है, 7,000 करोड़। 10 फैक्ट्रियां तो आईटीसी की अपनी हैं, 25-30 फैक्ट्रियां इन पार्टनरशिप हैं। एंड द होल आइडिया स्टार्टेड विद अ सिंपल कॉन्सेप्ट कि यार इंडिया में सारे लोग चक्कियां ले जा के कणक पिसा के आटा खाई जा रहे हैं। अगर हम एक ब्रांडेड आटा पेश करें तो लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं? 2002 एक छोटे से सेटअप किसी के साथ टाई अप किया कि यार तू हमारा अच्छे से तरीके से आटा बना दे। आटा स्टार्टेड सेलिंग, ब्रांडेड आटा। कुछ लोग कस्टमर तो होते ही है, 15, 10, 20 जिसको पता है, तो दे स्टार्टेड टेकिंग दैट आइडिया। एंड आशीर्वाद आटा इज द जेनेसिस ऑफ आज की डेट का आईटीसी फूड बिजनेस। तो यार कोई भी बनाओ, एंड द फॉलोबैक आइडिया वाज कि आशीर्वाद आटा, वी हैव आईटीसी 5-star hotels. सुना इसे? आशीर्वाद 5-star hotels will came into picture somewhere around 75-77, 1977. ठीक है? तो बोलते हैं अगर ये प्रोडक्ट नहीं चला तो होटल भी तो आटे की डिमांड है ही, तो हम अपना हाइजीनिक प्रोडक्ट रादर देन एक देसी चक्की तो आटा लेके अपने कस्टमर के लिए रोटियां बना रहे हैं 5-star सेटअप में, कल उसमें कुछ निकल आया, हु इज लायबल? वी। तो व्हाई डोंट वी मेक अ सेटअप जिसमें अच्छा आटा बन जाए विद ऑल द ब्यूटीफुल कंट्रोल्स। द कॉन्सेप्ट स्टार्टेड।
क्लिक 4-5 साल हो गए, वेरी गुड रिस्पॉन्स। 2010 के आसपास पहला मेगा सेटअप लगा जिसमें एंड उस समय यू डू द मार्केट रिसर्च, यू डू योर इनबिल्ट रिसर्च एंड यू थिंक कि अब ये प्रोडक्ट चल रहा है, अब इसको स्केल अप करना है। चल गया, अब मेरे लेवल से डिमांड पूरी नहीं हो रही, कुल्चे वाला भी यही सोच रहा होगा, मेरी एक डीएवी कॉलेज के सामने नहीं चल रही है, ये मैं कल नकोतर चौक से डालूंगा, मॉडल टाउन से लगा लूंगा। एवरीबडी थिंक्स ऑन दैट, a good smart businessman. So if we have a more hygienic and a more mega setup which can give us more thing, then technology also will be required. तो टेक्नोलॉजी कहाँ से मिली? एंड देन पीपल थॉट कि अगर एक बार इसको इस लेवल पे स्केल अप करना है और हमने 5-6 सालों में इतना बड़ा कर लिया, लेट्स गो फॉर द बेस्ट टेक्नोलॉजी। एंड द बेस्ट टेक्नोलॉजी व्हेन द रिसर्च वाज डन इज अवेलेबल विद अ ग्रुप कॉल्ड बुलर। बुलर दुनिया का, इट्स अ जर्मन कंपनी। बुलर इज द मास्टर ऑफ मिलिंग। पूरी दुनिया में आटा पीसना, बेसन पीसना, मैदा बनाना, ब्रेड के लिए कुछ करना, ठीक है, चॉकलेट इंडस्ट्री, मेडिसिन के लिए भी अगर आपको पीस के फाइन पार्टिकल वाला कुछ भी बनाना है तो बुलर गिव्स यू द सॉल्यूशन। तो देन मिनिमम वायबल, तुमने अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, तुमने रिसर्च करनी है, तुमने अब देख लिया कि प्रोडक्ट इस स्टेज पे आ गया, नाउ यू हैव टू गो फॉर द स्केल अप। बुलर को पकड़ो, बुलर ने लगा दिया, एंड नाउ with almost close to 30-35 factories, Buller is the solution for us. नई फैक्ट्री जो लखनऊ में लग रही है, यहाँ पे आटे का प्लांट लगेगा, तुमने बस अपना स्ट्रक्चर देखना है, बुलर के बंदे को बुला लो, बुलर वाला देखेगा। ये चीजें हैं हमारी ट्राइड एंड टेस्टेड, ये चीजें लगेंगी। We have to give the same product or even a better product, and hygiene and consistency are our key. That is what it is. Learn and analyze what is being valued. Now the hygienic packed atta of Ashirwad is valued. तो उसके ऊपर काम करना है, उसको नॉर्मल सेटअप से हटा के वर्ल्ड क्लास सेटअप वाले में ही देना है, ताकि हमारा कस्टमर कोई भी उसको करना पाए। और जो हमारे कंपेटिटर हैं, जैसे हमने मैगी को स्टडी किया, दे आर आल्सो स्टडीइंग एवरी डे। Even Adani has launched Fortune आटा, कैमल आटा, इसने देखा फगवाड़ा। He is also saying कि पहले चक्की थी, हाइजीनिक पैक्ड आटा दूंगा। There is a guy in लुधियाना, लखबीर सिंह, वो मिक्स करके आटा देता है, बेसन, सोया, हेल्थी आटा। उन्होंने एक चक्कियां तो 5 साल से 4 चक्कियां बना लिया। And because we are also an organization which will examine the customer, we will check what is working and what is not working. Innovate, mindset. तो हमारे बंदे भी वो लुधियाने वाली चक्की से आटा लेके आए कि ये क्या कर रहा है, ऐसा, ओके, ये नई गेम है। And we also launched a concept called नमो चक्की, कि फोन करो, हाँ जी मेरे को ये आटा ऐसा, इसमें सिर्फ बेसन डाल के चाहिए, आ जाओ भाई ले जाओ, एंड इट विल गेट डिलीवर्ड टू योर होम। सो यू हैव टू आउटस्मार्ट योर कंपटीशन, यू हैव टू थिंक व्हाट इज गेटिंग वैल्यूड, जिसके लिए लोग आंख बंद करके आपके पास आ जाएंगे, एंड व्हाट इज नॉट गेटिंग वैल्यूड, जो चीज चाहिए ही नहीं। थार वाले कस्टमर तो पुछो, 3 डोर वाले 3 साल वाले साड़ी थार तो हम बिक्री भी नहीं आ रही। When that concept comes in the market, everybody thinks ना यार अब इंडिया साल से तो रुके ही हैं यार, 6 महीने हो रुक जाने। That is why many of the cars are actually giving you discount now. And उन्होंने अपना एक नया शोशा पेश किया है, महिंद्रा XUV का 1 लाख रुपए प्राइस कम कर दिया। ये अब सारा फोकस थार पे है जो 5 डोर आ रही है। वैल्यू की सारी दुनिया ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਉਧਰ ਲਾਦਾ, सॉरी इधर देखो ही ना,
जो नहीं भी पसंद होगी थार ले लो क्योंकि 5 दरवाजे आ गए बस समथिंग लाइक दैट। सनरूफ आ गया 5-7 साल पहला ही सी सनरूफ वाली कार तो सनरूफ मेरी कार में है मैं तो 2.5 साल 2 बार खुलिया एक बार खुला ही रह गया वो रात को गार्ड आया मेरी बिल्डिंग वाला गया यो थोड़ी कार का कुछ खुला है ऊपर मैं क्या वो भूल गया मैं डज इट मेक सेंस जब छतरी दिख रही कार का पर्पस इंडिया के कॉन्सेप्ट में तो वो था ना जो टाटा ने पेश किया सनरूफ तो आप ही ना अपने इन्हें नजारे हैं ऊपर स्विट्जरलैंड में रहते हो तो पता लगे कि हाँ सनरूफ खोल के आगे आसपास दिख रहा है जी घैंट चीजा याद है नहीं पता कोई केले मारे तो बस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ केले खा के केले सिर्फ भी खड़े होते तो अभी सफाई और करनी मैं अपनी पसीने आ जाए यू हैव टू वैल्यू ऑल दोस थिंग्स यू नो वन ऑफ द डिजास्टर्स जहां पे लोगों को कस्टमर को समझ नहीं आया समझ आया भी तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में गलती कर गए वन ऑफ दिस काइंड ऑफ ए क्लासिकल एग्जांपल इज सर्फ दुनिया का सुपर डुपर ब्रांड सर्फ सारी दुनिया में जितने भी लॉन्च हुए गदर है पूरा मतलब सर्फ छाया पड़ा है उन्होंने लॉन्च किया अरेबिक कंट्रीज में सर्फ गंदे कपड़ों को साफ करे अरेबिक लैंग्वेज उल्टी लिखी जाती है किसी ने देखा ही नहीं वो बस ठीक है अपना प्रोडक्ट तो बिक रहा है थार कोई नहीं 3-4 दरवाजे कोई नहीं आपा कुछ करने की लोड़ नहीं है सो जाओ रैपिड एंड द टॉर्टोइज स्टोरी मैं तो जीती जाऊंगा मेरे कोई नहीं है अरेबिक कंट्रीज में सर्फ के ऊपर छाप दिया गया सर्फ गंदे कपड़ों को साफ करे पर जो उर्दू लिखी जाती है वो ऐसे होती है साफ कपड़ों को गंदा करे वो परेशान हो गए नहीं रहा ये अरेबिक देश वाले कपड़े धोते हैं कि नहीं ये वो चिट्टा जिहा पाई जाते और वही पाई जाते बिक क्यों नहीं रहा फिर एक लोकल बंदे को पकड़ा भाई देख यार जाके क्या हो रहा है वो कस्टमर से फीडबैक ले रहा है इनोवेशन कर रहा है रिस्क असेसमेंट देख रहा है कि आज रिस्क लेके इसके घर में जाके ऊपर से देखना है ये कपड़े धो भी रहे कि नहीं कि गंदे ही पाई जा रहा है किसी ने भी रिस्क लिया होगा सूम साहब के भी देखा होगा किसी का यार सब कुछ तो ठीक हो रहा है पंगा नहीं है फिर किसी ने जैसे कोक एंड पेप्सी ने दिमाग लाया और देखो दूजे वॉशिंग पाउडर दिख रहे हैं कि नहीं हाँ यार वो तो अंदर दिख रहे हैं हम जिस मार्केट में एंटर किए हैं कभी भी सर्फ पीपल थॉट कि वहां पे तो हमने कंपटीशन को उड़ा दिया धजियां उड़ा दी उनकी एंड वी वर द रूलर्स अराउंड द वर्ल्ड इतने क्यों हो गया फिर किसी ने शांति में बैठ के पीछे देखा तो यार गंदे कपड़े साफ कपड़े में गंदा कौन है डॉक्टर जी ने लिखा है that is how things go wrong overconfidence that is how brands vanish overconfidence general motors पता है शेवरोले ਪੁੱਛਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ शेवरोले ਕੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੇ शेवरोले ਦੇ ਮਾਡਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਜੋ शेवरोले ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਡੀਆ चाइना और कुछ मार्केट की बिकणगे थोड़ा जा सस्ता करके बेच दो बर्बाद करके अग लाने नालों जस्ट सेल इट लाइक दैट एंड हाउ विल दे सर्वाइव अगेंस्ट कंपीटिटर्स लाइक टोयोटा होंडा मारुति 2-4 साल 10 साल की गेम खत्म ठीक है कुछ सवाल कोई थानू कोई एक्साइटिंग चीज ਤੁਹਾਡੇ दिमाग जा रही हो यू कैन शेयर विद मी समझ आ रहा है नींद आ रही है किन्ने बंदे ਨੂੰ गल है सारे ਨੂੰ ही आ रही है देखो एक कस्टमर फीडबैक मैं आ जाऊं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ कस्टमर फीडबैक ਲੈਣ कि हाँ जी मेरे उसमें मेरे प्रोडक्ट में ये है मेरे प्रोडक्ट को लेक्चर को सुनने के बाद तुम्हें नींद आती है कि नहीं आती तो उसी को जवाब नहीं देना बोली जाओ relevant how many of you think it is relevant and you are understanding the concept that is the first guy चलो पार्टी पक्की है this is starting to recover ये है this is the crux viable minimal viable startups small things
that have amazed the world, and from amaze we were talking about Amazon. What was the starting point of Amazon? Anybody? अब पूरा देखो इसको यूज कर रहे हैं सर्फ की तरह, डे इन एंड डे आउट। मैं भी शॉपिंग करता हूँ Amazon से। मेरी बेटियां तो तब करती है जब मेरे पास OTP आता है क्रेडिट कार्ड का, पापा एक OTP आया होना भेज दो, बाद में पता लगता है 10-20 हज़ार का पड़का लग गया। तो Amazon is our life now. What was Amazon? How it started? किसी को आइडिया है? Anybody? किसी ने नहीं दिमाग लगाया कभी इस लेक्चर का? हाँ, और ग्रेट मैन यार, तू तो पार्टी करती है, सही है गलत है, तू यू डिजर्व ए जूस है। पक्का नहीं कोई, यू हैव द रिस्क टेकिंग एबिलिटी, यू आर स्टैंडिंग अप एंड सेइंग यस, बताओ पक्का कैसा जो भी है। Amazon ने इसका भी Amazon ने इसका भी कि लोग मार्केट ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਲੋਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਆ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆਏ ਹੋਣ। ਲੋਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ਾਪਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਿਚਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਕਨਸੈਪਟ ਬਣਾਤਾ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆਨ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੈਸ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ Amazon ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ 10-15 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। What was the starting point? Any idea? नहीं. Books. हाँ. Students, books. And when I was walking into your college today, ऐसे जरा सामने जरा common area है. There is a beautiful sign there, which I think the date has gone. Even I can contribute. Please give your old books. Anybody has given? So the whole concept of Amazon started with a person. कौन है वो नाम? जेफ? Yes. उन्हें देखा कि in a very good country like America also, there are lot of people जिन्होंने पढ़ने ਲਈ अगर given a choice तो वो पुरानी books भी लेके पढ़ना चाहेंगे। How many of you know the story of George Washington, the guy जिसके नाम पे Washington, the capital of US is there. स्लम एरिया का बच्चा था वो, जॉर्ज वॉशिंगटन। स्लम एरियाज में रहता था। किसी ने बोला कि यहाँ से थोड़ी दूर आगे स्कूल है, अगर पढ़ लोगे तो योर लाइफ कैन चेंज। दिस इज स्टोरी ऑफ समथिंग 1800 समथिंग। मिस्टर जॉर्ज वॉशिंगटन वेंट टू द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, किसी तरह सिक्योरिटी के गेट गुट से निकल के कैसे भी, एंड ही टोल्ड द प्रिंसिपल, सर मैनू भी ये स्कूल पढ़ना मिल सकता है, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। वो कहता कहा रहता तू? एंड जस्ट इमेजिन वहाँ पे उस जमाने में माइंडसेट क्या होती थी, वो तेरे पास पैसे नहीं है, तापा को तुपा का रीजन ली। वो 2 दिन आके खड़ा रहा वहाँ पे, वो पा जाए तो वो बाहर खड़ा रहा बेचारा, यू नो क्या पता चांस लग जाए, कोई भगवान मेरी सुन ले। वैली प्रीपोजिशन भगवान। एक दिन दुखी हो गए, दूसरे दिन टाइप्स। द प्रिंसिपल सेट, हमें यहाँ टाइम वेस्ट करिए रहे हैं, तो अपना हीरो बन रहे हैं बहुत ज़्यादा, यहाँ पे खड़ा होकर दिखा रहा है। कम इन द क्लास। इस रूम में कल को कोई ऐसे ही कंपनी का कोई बंदा आके हमें लेक्चर देगा कोई, तो ये रूम साफ करना है। अगर एक भी डस्ट का पार्टिकल भी मिल गया ना मुझे, वंस यू कम डू योर जॉब एंड उसके बाद यू कम टू मी एंड से सर द रूम इज क्लीन, एक डस्ट का मेरे को पीस भी मिल गया ना, तेरे को मैं कल से सिक्योरिटी को बोल के यू विल नॉट, 2 दिन से यहाँ तो मेरे ऑफिस के सामने खड़ा है ना, तो अंदर भी नहीं घुस पाएगा। दिस गाय स्टार्टेड, उसने अपनी शर्ट बनियान सब निकाल के, कुर्सियां, फर्श, टेबल, फोटोआं, पंखे, एसी तो होंगे नहीं उस जमाने में, सब कुछ साफ कर दिया, तड़ातड़ 2 बार साफ कर दिए। उसके बाद वो गया, सर वो साफ हो गया, एक बार आप चेक कर लो। उसने बोला कि आई थिंक यू कैन, तो एक टास्क दिया था, एंड यू हैव गिवन मी कस्टमर डिलाइट। उस जमाने में ये वर्ड भी नहीं था,
ये पिछले 20 साल का वर्ड है। ये ऐसा तो मैंने देखा ही नहीं कभी कि ऐसा हो गया। एंड ही वॉज आस्क्ड टू कम टू द स्कूल एंड देन किसी न किसी तरीके से उसको स्पॉन्सरशिप, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ दोज ग्रेट कंट्रीज। एंड दैट इज वेयर अमेजोन का बंदा भी थोड़ा सा ठीक ठाक ही था वो भी। उसने बोला कि यार अगर मेरे को अच्छी बुक्स मुफ्त में मिल जाए, हाफ रेट पे मिल जाए, जो हम कभी कभी अपने पेरेंट्स के साथ बोलते हैं ना, तो क्या यार तुसी मुझे कितनी पुरानी किताबें दिलवाई जा रहे हो। You know? मैं तो अपनी मतलब सिस्टर से ही लड़ पड़ता था। शी वाज 2 years सीनियर टू मी। कभी कभी उसकी एक आधी हिंदी हिंदी की किताब भी मुझे चिपक जाती थी कि ये तो जी तू यही पढ़ लेना बस। तो ही थॉट कि एक छोटा सा काम करके देख लिया इन आवर एरिया। लेट्स स्टार्ट विद हाउ पीपल कैन गिव बैक देयर बुक्स। एक छोटी सी साइट बना दी उसने, प्लीज डोनेट योर ओल्ड बुक्स। और रखी भी होगी, संभाल के भी रखी होगी, कॉमर्स की अलग रखी होंगी। इट डजंट गो विदाउट एन एफर्ट। साइंस की, इंजीनियरिंग की, फूड टेक्नोलॉजी की, हिंदी की, मेरी बहन की किताब भी ना हो उसमें, लाइक दैट। एंड देन ही सेड देयर आर ओपनली मेनी पीपल वर नॉट कमिंग अप। पता भी नहीं था लोगों को। व्हेन दैट स्मॉल वेबसाइट गॉट लॉन्च्ड, मेनी पीपल केम, यस वी आर पुअर, वी नीड दिस। स्टेप नंबर 2, मैं आपको आपके घर में दे दूंगा। यू ऑर्डर। अभी भी वो प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच रहा था। 15 साल पहले जहां से तूने बोला, दिस स्टोरी इज 15 साल उसके पहले, 15-18 समथिंग, ही स्टार्टेड डूइंग दैट। उसको सोशल सर्विस में ही उसको ऐसे मजा आ रहा होगा कि किसी को नीड है, मैं उसको 4 बुक्स उसके घर दे के आया, मेरे को 5 बंदे और दे दें। पहले मैं 20 बुक्स की इकट्ठी करता था, अब मैं 100 बुक्स की इकट्ठी करने लगा। आई हैव दिस। जाते जाते किसी घर में गया होगा, उसकी मम्मी ने किताबें पकड़ी होंगी, वो मेरे जैसा बच्चा होगा, वो खेलने में इंटरेस्टेड होगा, उसने बोला होगा मम्मी मेरी किताबें आएगी, है कोई आएगा जेफ, आप ले लेना प्लीज। वो 4 किताबें दी होंगी, वो मम्मी ने भी कहा होगा बेटा तू आया था है यार, मेरा नमक का पैकेट खत्म हो गया, तू मेरा नमक भी ला दे यार वहां से दुकान से। Then you realize कि ऐसा एक सर्विस प्लेटफॉर्म जो मैंने शुरू किया जस्ट नीडी बच्चों के हेल्प के लिए, और उसमें तो लोग बोल रहे हैं कि अगर यार इसमें ये भी ऐड कर दे, तू किताबें तो देता ही है यार, ऐसे कर इसके कवर भी ले आया कर अगली बार। फिर जो स्मार्ट गर्ल्स होती है जिन्होंने अपनी बुक्स को बड़ा अट्रैक्टिव रखना होता है, उन्होंने बोला होगा ऐसे करो मिस्टर जेफ प्लीज कुछ स्टिकर स्टिकर भी ले आया करो साथ में, किताबें पढ़नी थोड़ी होती है, सजानी भी तो होती है। यू आर एडिंग, यू आर प्रोवाइडिंग अ वैल्यू। जेफ ने बोला कोई गल नहीं, जेफ भी ढीठ होता रहेगा सी, मैं अगली बार किताबा भी नहीं लियाऊंगा, जाओ दफा हो। Amazon की कहानी उत्थे खत्म हो गई थी। बट नाउ Amazon इज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। स्टिकर भी लिए थे, मैंने भी लिए थे थोड़े दिन पहले अपने लिए ही, हमारे ऑफिस में लगाने थे कि स्मार्ट डेस्क होना चाहिए आपका बड़ा सही। 2-3 सितारे पूरे मैंने भी Amazon से खरीदे। बॉटल मेरे ऑफिस के डेस्क पे कहाँ रखनी है उसके लिए मैंने माई वाटर बॉटल करके एक स्टिकर खरीदा, उसके ऊपर मैं रखता हूँ। सी हाउ दिस गाय गेव यू ऑल दिस थिंग्स एंड दिस इज हाउ somebody listens, an organization will listen, smartly act on it, do a feedback, will know what are the target audience पहले सिर्फ बच्चे थे, अब वो घर में और भी चीजें डिलीवर करने के बारे में सोचने लगा। स्टेप 1 एंड दैट जो ऊपर फोटो लगी है ना, वो क्लासिकल फोटो है एंड इट कैन बी कोरिलेटेड विद अ फोटो ऑफ जो हेनरी फोर्ड ने जब कार के बारे में सोचा। किसी ने किसी जमाने में सोचा होगा यार पैदल चक चक के तुर के जा, उसी जमाने में किसी ने गाना भी लिखा होगा, हाय मेरी जुत्ती लग रही थी फिर भी मैंने तुरना पिया, तो पंजाबी गाना। कहता यार कुछ ऐदा दी चीज ही आ जाए यार, थोड़ा जिहा तुरना घट हो जाए। Somebody came with the concept of this or a bicycle. Now the most funny story of bicycle, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता होगा, सामने नहीं पता सी। In 1910 या 1905 जो इंडिया में बाइसाइकिल्स आने लगी तो वो सिर्फ राजाओं के पास होती। महाराजा पटियाला चिट्टी निक्कर, चिट्टी टी शर्ट, चिट्टी थाड़ी,
चिट्टे शूज पहन के अपने मंत्री को खड़ा करता था वहां पे कि अपनी बाईसाइकिल आई है, इतने खड़ा हो, शहर देखने आएगा। उसका मंत्री साइड में खड़ा होता था, लाइक एन ऑटो एक्सपो। ऑटो एक्सपो में टाटा होता है और टाटा के मैनेजर बताते हैं ना ये कार किस लिए है। तो महाराजा पटियाला मुच्छा मच्छा, उन्होंने नहीं पता कि ये वैल्यू प्रपोजिशन, उन्होंने नहीं पता अमेज़न कौन है, बट द मंत्री हैज टू डू ऑल दीज थिंग्स एंड दैट इज व्हाट पीपल थॉट कि यार यही आ गया, चमत्कार है यार ये साइकिल। लोग आके पूछते थे, किसी ने पुरानी फिल्में भी नहीं देखी होंगी, लोग आके पूछते थे तो चलती भी है, 2 पहिए, मतलब होता क्या कैसे? हमारे डैडी स्टोरी सुनाते थे कि हमारे पिंड च नकोदर दे कोले मेरा पिंड है, कहते जो सब तो पहली बारी ट्रेन आई तो लोग पहला रेलवे लाइन के कोले इकट्ठे हो गए कि आज ट्रेन आने वाली है। जो ट्रेन आई तो एक बंदे के पीछे खुराफाती होते ना बंदे, इनोवेशन आइडियाज, हु आर योर कस्टमर्स। एक बंदे ने क्या, वो इतने सामने खड़े हो एकदम नाल लग के, ਇਹਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੋਗੇ। एंड व्हेन ट्रेन पास आ रही है ये भाग रहे हैं पीछे को। यू डिड नॉट नो द प्रिपोजिशन वो क्या है, कि इसका आगे आएगी, दिखा ही नहीं, बट समबडी मेड दिस आइडिया। यार ऐसा कुछ बना सकते हैं जिससे चलना थोड़ा आसान या उसका अल्टरनेटिव आ सकता है। कितने सालों तक उसके बाद फिर स्कूटर वाला कॉन्सेप्ट आया, वेस्पा इन इटली, पियाजियो, फिर हेनरी फोर्ड आया। बस कार वो थी जो होनी चाहिए थी, पहिए, गियर, 1 या 2 सीटें। हेनरी फोर्ड ने तो ये भी नहीं पता थी भी बारिश आ गई तो की करना है। हेनरी फोर्ड ने बोला होगा प्रीपोजिशन मिनिमम वैल्यू उस समय उसने रखी होगी, जब बारिश आओगी तो कार ही ना बाहर कटो, तो टिक के घरे बैठे पकौड़े खाओ, छत क्यों चाहिए तुम, पैसे लग रहे हो। जब वो खुद 2000 बार पे गया होगा या कस्टमर ने फीडबैक देती होगी, फिर छत आई, इंप्रूवमेंट आई। पहले जमाने में तो कार तांगे से स्लो चलती थी, तो चलती थी बस वो। ट्रेन वही जो हमारे गांव में पहले आई होगी, वो स्लो ही थी, अब वो तो डीजल वाली कैंट आ गई। जो दार्जिलिंग या शिमले वाली ट्रेन जो हम बोलते हैं बहुत एक्साइटिंग है, या इंस्टाग्राम फोटो खींचेंगे, उसमें तो बहुत मजा आता है, जब मर्जी चढ़ जाओ जब मर्जी उतर जाओ। अब ये सोचो कि किस जमाने में वो ट्रेन बनी थी एंड व्हाट वाज द प्रीपोजिशन, क्या उसको डाटा दिया होगा, क्या फीडबैक होगी। अंग्रेज ने बोल दिया होगा भाई ट्रेन बना देगा, चढ़ा शिमले तक जानी चाहिए, मुझे नहीं पता कितना भाई। सो दिस इज हाउ इट इज। तुम एक प्रॉब्लम या एक नीड को आइडेंटिफाई करते हो। महिंद्रा थार ने आइडेंटिफाई किया कि लोग हमें चाहे गालियां निकाले, ਆਪਾਂ रैंगलर की कॉपी बना देनी है, जब तक रौला पाउणगे उਦੋਂ तक तो 3 साल हो जाएंगे, उਦੋਂ तक तो बहुत बिक जानी है। Many people do this type of destructive business, it happens, but they came with ये है, लोगों को मिल जाएगा, लोग वैसे ही पंगे ये लेते हैं, अपनी नॉर्मल जीप्स को या आर्मी वालों के पीछे घूमते रहते हैं कि पुरानी डिस्कार्डेड जीप्स दो। तो ये एक है, हम नॉर्मल कारें बनाते जाएंगे, वी आर फाइटिंग अगेंस्ट पीपल लाइक मारुति, टोयोटास एंड ऑल दोस थिंग्स। कुछ अलग करो। वी केम अप विद एन आइडिया विच इज अ प्रॉब्लम, या जो पेन एरिया है या जो एक लैकिंग एरिया है। कौन से ऑडियंस उसमें चाहते हैं? यंगस्टर। थार बनाने के बाद अगर एड में पापा के नाम की एड होती, पापा अपने मुंडे नूं थार ले दो, अद्धे पापा ने तो थार वाले भी चपेड़ा मारनिया सी, अपने बच्चे तो मारनिया सी। टारगेट उन्होंने पकड़े यंगस्टर्स, एडवेंचर, गो टू द हिल्स, योर कार, थोड़े पापा जी उम्र हो गई, थोड़ी जिंदगी ये कार थार। पापा पिक्चर जी नहीं है, पापा पिक्चर जो आ रहे हैं जो थार के पैसे दे रहे हैं और परेशान होकर दे रहे हैं। बट दे नो व्हाट इज द ऑडियंस, मिनिमल एफर्ट, दिमाग लगा के। एंड व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स। वो तो ऐसी कि रैंगलर की कॉपी बना दो, हो सकता है रैंगलर की 5 दरवाजे,
ਉਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ 100% ਕਾਪੀ ਬਣਾ ਦੀ, 3 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਬਣਾਓ ਯਾਰ। And then you make up a most viable minimal viable product 99% कभी भी फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता। दैट इज द की। आइडिया लेके तुसी बनाता, नैनो आइडिया लेके बनाता, प्रॉब्लम आएंगी, बट यू हैव गिवन अ कस्टमर अ प्रोडक्ट एंड कस्टमर इज सो टू से हैप्पी, एंड कस्टमर अगर 60% 70% भी हैप्पी होगा, ही विल बी हैप्पी टू शेयर यू द फीडबैक, एंड दैट इज द इंटेलिजेंस दैट यू हैव टू प्ले विद। उसकी फीडबैक आ गई, कितना स्मार्टली कितना जल्दी तुसी काम कर सकते हो, उसको इंप्रूव कर सकते हो, तो कस्टमर बहुत अच्छा खुश हो जाते। कस्टमर हमारे भी फोन आते हैं। एक दिन एक मैडम का फोन आया, प्रोफेसर मैडम फ्रॉम पानीपत, सर मैं इतने साल से नॉर्मल आटा खा रही थी, अब मैंने ऑर्गेनिक खाना शुरू कर दिया पर मुझे पसंद नहीं आ रहा, आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए। मैंने बता दिया, चलो कॉल ओवर। नेक्स्ट डे अगेन शी कॉल्ड मी, सर बस एक क्वेश्चन आपसे पूछना है कि आप अगर आप आईटीसी में सब कुछ अगर आपको पता है आटे के बारे में, तो आप कौन सा खाओगे, नॉर्मल या ऑर्गेनिक। मैं कहा मैडम तुम एक क्वेश्चन का जवाब दो, नॉर्मल आटा जिसका पता नहीं है गेहूं कहां से आई है, और ऑर्गेनिक आटा जिसका पता है कि ऑर्गेनिक सर्टिफाइड गेहूं आई है, हेल्थ के लिए कौन सा अच्छा है, ऑर्गेनिक। मैं कहा मैं तो जी 2 सालों से ऑर्गेनिक खाता हूँ। कहती हाँ जी मुझे पता लग गया। प्रॉब्लम दैट शी हैड, 2 बार उसने मेरे से बात करके शी गॉट सेटिस्फाइड एंड शी इज हैप्पी, एंड यू आर बिल्डिंग ट्रस्ट एंड यू आर सेटिस्फाइंग द कस्टमर। ये सारी मिनिमल कभी भी फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। बिस्लेरी का ऐसा वाला पैक कभी भी फाइनल था, बड़ा पैक, कोई और पैक, फिर एक क्लासरूम पैक या मीटिंग पैक। अब तो उसकी ऐड में ऊँट भी आने लगा कि बंदो तुम्हें तो क्या पता है, तुम्हें तो क्या है, ऊँटों में भी पता है बिस्लेरी, अगर तुम बिस्लेरी नहीं पीते तुम ऊँटों से भी गए गुजरे हो। दैट इज द मैसेज ही वांट्स टू कन्वे। पर वो नेगेटिव नहीं बोलता, वो तो ये बोलता है कि ऊँटों में बताया होगा ठुक देता है दूसरा मनी। तो मतलब इन ए वे यू आर इवन वर्स देन देम अगर तुम कुछ और पीते हो तो। यू कीप ऑन इनोवेटिंग, यू कीप ऑन आइडेंटिफाइंग कि कौन से है। बड़ी बोतल जो थी बहुत सारों को उठाने में ही प्रॉब्लम थी, ये हर एक बंदा अपने बैग में पर्स में इजीली रख सकता है, कार में इजीली रख सकता है, और ऐसा भी नहीं है कि 6 महीने तक यही पी जाना। वो बड़ी बोतल आई थिंक वॉज वेरी सक्सेसफुल जब कोई पुराना टाइम था, जैसे मैं आता था 4 दिन में ट्रेन में। So that is how. And Amazon, same stories with Spotify music, same stories with Airbnb. Airbnb पता क्या होता है? हाँ, जोर से बोलो, सबको बताओ मेरे को। होम स्टे, कितना अच्छा है। फार्म स्टे, a very good concept which has come in India and Punjab now especially is farm stay. Many people were actually going out of their villages, शहर में रह रहे थे, but अभी one of the big tourism concept is farm stay. हम लोग ये होशियारपुर के पास एक ला विदा फार्म है, अमेजिंग फार्म। We were planning a party of our office there. हमने सोचा कि कोई चक्कर ही नहीं है ना, जो मर्जी मिल जाएगा। अभी 15-20 दिन पहले we called and when we called up for the booking, he said सर अभी कोई फायदा नहीं है बात करने का, वैसे हमारा रेट ये है, अभी तो 45 डेज के लिए सैफ अली खान और उसका कोई शूटिंग का क्रू है, पंजाब बेस्ड कोई फिल्म बना रहे हैं, 45 दिन की तो उनकी बुकिंग हो चुकी है। 10-15 years back nobody imagined about this. Airbnb is bed and breakfast, होम स्टे, और इसकी अब पूरी वेबसाइट है। ये होटल में अगर आपको 5000 का रूम मिलेगा, आप लोगों ने ऑथोराइज करके ओयो रूम्स टाइप, तो ये बिल्कुल घर के अंदर रूम है ये Airbnb, एंड इट इज वेरी पॉपुलर इन यूरोप, क्योंकि वहां पे होटल का रूम की कॉस्ट भी बहुत आती है। सो
यू स्टे 1000 रुपया और आपको बेसिक बेड मिलेगा, कोई फैंसी चीजें नहीं मिलेगी। एंड देयर आर लॉट ऑफ कस्टमर्स हु आर लुकिंग फॉर दैट। बहुत सारे कस्टमर जाते नहीं है ना, ओनली 20% ऑफ कस्टमर्स गो टू ताज और ITC होटल्स। Then there are second layer of hotels, third layer of hotels, and then for youngsters and all those things. And now the craze is everybody says go to a homestay. वो कौन सा है वो मनाली के पहले टी से कौन सी जगह? टी से तीर्थन वैली है, तीर्थन वैली, टी तीर्थन वैली कैंप्स। और उन्होंने भी ये किया, हमारे यहाँ पे घर का खाना मिलेगा, घर का कंफर्ट मिलेगा। ये क्लियरली डिफाइन कर लिया प्रीपोजिशन। ये नहीं बोला नेगेटिव कि हमारे पास 5 स्टार जैसा नहीं मिलेगा, हमारे पास सोशली मिलेंगे। टेल द वैल्यू प्रीपोजिशन। एंड बहुत लोग जा रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू फॉलो सम यूट्यूब चैनल्स और ये सब जो ट्रैवलिंग वाले होते हैं? टाइम चेक ज़्यादा ओवरशूट हो गए, आप लोग बोर हो गए। So how many of you actually have seen some of these blogs or you follow that? There is a person, उसका नाम भूल गया मैं, उसका blog आता है Untravel Show. He is one of a brilliant guy and 99% उसके homestay होते हैं। आप करना follow उसको, देखा था blog. And this guy was in IT, B.Tech किया हुआ था उसने, IT में था, 7-10 years उसने काम किया था। And now he has opened this blog, and now he takes small groups in beautiful homestays, Tirthan Valley, some part of places near Kashmir or something, Banaras, ये वो, मतलब homestays में घरों में, मतलब Dharamshala is a classical place where many people want to live in a Tibetan house. And Facebook, Amazon और Facebook are like every day. और जिस बंदे ने मार्क He made Facebook for people like you. जब वो पढ़ता था उसने बोला यार अपने कॉलेज में सारे बच्चे हैं, एक क्लासिकल बना दें जिसपे सारे अपनी प्रोफाइल कर लें, 5 साल के बाद वो कहाँ जॉब कर रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, ये वो सब शेयर करते रहेंगे, वी विल बी कनेक्टेड। फेसबुक के पहले भी एक साइट थी, किसी ने सुना है? ऑर्कुट।